So in the last lecture, we started with basics of C++ programming. In that, we have seen the history of C++ programming, the Dennis Rostrup, the developer of C++ language. What is C++? So it is basically, in short, the implemented version of C, which almost uses all the important features or uh, the effective features of C, and along with that, some more new features are added to make it powerful language. The simple C++ program components. So in the last lecture, we have seen a very basic program to print hello world on screen. And we learned every element of that program. So basically, this is just a 7 to 8 line program wherein we learn what is command line, what is the meaning of or importance of including header files, what is the new element that has been added to C++, that is namespace, and that was not in C. So we studied about namespace and what is the importance of importing namespace. Okay, so header files and declaration part, while namespace include the definition part of the standard libraries of C++ objects. Okay, so all those objects which are built in that we will be using in the program that are declared and defined in the header file and namespace respectively. Then main function, why do we give the return type as integer to the main function, is that the reason behind this is the all C++ program in which we write the main function, the returns integer type value to the operating system or the programmer, and hence we have to write int as a return type in front of the main function name, and we have to give the statement return 0 to indicate that this program has run successfully without errors. If other than 0 value will appear or will be returned to the OS, then it means that there were errors in your program. This program simply prints hello world. For printing, we use the cout operator. So cout is object, and this along comes along with the insertion operator, and these two together performs the job of printing anything on the screen. So the output of this program, you can see hello world. Obviously, you are going to write this program in the editor, a compiler that you use. Generally, we use G++ compiler, means in our college labs, G++ compiler is available. We just edit the program, save it with the name and extension as .cpp. You can give any name to your program. I have given first. The extension has to be .cpp. Save it and then run it. This is the detailed portion that we have seen. The comments are of two types: single line comment, multi-line comment. Header files, there are many more header files, but the most commonly that we use is IOStream, that is input output stream header file. Namespace, the namespace that we are going to use in most of our programs is std, that is standard. ये namespace का नाम है. A main function in every C++ program, there has to be the main function because it is the starting point of execution of your program. And inside the main function, we include that code we want to run. So in the main, I have simply included that code, that is cout less than inside double quote. I have written the statement that I want to print as it is on the screen, that is hello world, and that was how this cout operator works. Cout object works along with this insertion operator. So here we in the last lecture we have learned that how the whatever the sequence of characters is there present inside the double quotes, present inside the double quotes is inserted with the help of this operator into the standard output stream object. And this output stream object actually representing the output devices of your computer, and that is screen in this case. So ये जो content है C++
प्लस जहाँ एज इट इज प्रिंट होगा। हमारे केस में कंटेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑल्सो। सो आपके आउटपुट में हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसे पूरा दिखेगा, क्योंकि डबल कोट के इनसाइड हमने हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा है, तो वो एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। देन इनपुट ऑपरेटर, input operator का job similar to scanf function है, that we have used in C languages, and input operator performs its job along with the C in standard input stream object, which represents the standard input devices, that is mouse, keyboard, or scanner. And in this case, our standard input device is keyboard, from where what is the case that whatever the user will enter from the keyboard, it will be extracted, it will be first assigned to this object, and then this extraction will happen from that object, and that value will be assigned to the variable on its right hand side. So if you are simply writing C in greater than number 1, means C in and extraction operator number 1, it means whatever, if I enter the value 5, then 5 from the keyboard will be actually get into this object, and then the job of assignment will be done with the help of this extraction operator. It helps to extract the value from the keyboard and assign it to the variable on its right hand side. So what is the variable on its right hand side? The number 1. The variable means actually the name of the memory address. So whatever this memory address held by the number 1 variable, that memory address now will be filled up with the value 5, because I have given the value 5 to number 1. Okay, that is actually how the inside operation is happening. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल को, या सपोज यहाँ पे जो भी था नंबर, उसको 45.5 वैल्यू दी है, तो वो जाके कहाँ असाइन हो जाएंगी, मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी उस वेरिएबल के लिए. So this is how input operation is performed. One more program I want you to look at, and that is for addition and average. Okay. So hope all of you have written the last program for Hello World. Please note down this program also. Please note down. Okay, while I am explaining, you just note down this program. And after this, we will see the program of class. Why I am taking this program? Because in the previous program, we object. So I want you to learn the use of that one also. So just copy this program in your notebook. So this time I have not marked the which statement is known as what, right? So you must have got familiar with the thing. Hash include IOStream. I could have added the comment line also, right? हम comment line यहाँ add कर सकते हैं? Yes. So आपको don't submit your attendance. Attendance submit करने के लिए आते हैं तो आप लोग यहाँ पे just we can add the comment line here. How to write the comment line? I can start with the double slash, that this is a program. This is a program for addition and average of two numbers. Okay. So this is simply the comment line we have added. Will this going to be have any effect on the output? No. It is just for the information. It is just for the information of users. So we can add this so that whenever any reader will go through this program, we will understand by just looking at the first line. Okay, this program is related to this concept. Okay, that is just the reason behind writing the comments. Now, the secondly, I have included the header file, that is hash include IOStream. Okay, using namespace std standard
Now again, I am just going to simply calculate the sum and average, and hence I don't need any class, objects, and everything. So I am going to include single main function, and I will write the coding part inside that. Here you can see I'm going to use two variables to store the number which will be inputted by user. I'm going to use two more variables to calculate, to store their sum and to store their average respectively. So here you may see I have used float type of variables. Why? Because maybe the user will enter some values which will produce the average in fractional. Okay, fractional number. So whenever there is a calculation of average, it's better you keep it float, or you could have used integer also. ठीक है, आप यहाँ कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे float रखा है. Float n1. Hope you are familiar with declaration of variables, right? How the variables are declared. Just once tell me that you are familiar with this simple things. Chat box में एक बार आप messages डालो. Yes, you are familiar with the declaration of variables, how the function is declared in C. Yes, just put your message in chat box so that I don't have to explain how the variables are declared. Please chat box में messages डालो. Yes, you do know. These are the basic things in program, right? Because it is assumed that you know C programming. So this is the most basic thing that you declare variables. Yes, you know this? Yes. Okay. Only Ved knows. Nishita. Okay. Okay. Some more replies I need. Okay. Okay. So I'm assuming that you are familiar with the variable declaration part and function declarations, how the function is written, function definition क्या होती है, declaration क्या होता है. Okay. So let's do some. Float data type n1, comma n2, comma sum, comma evg. Okay, semicolon. End your statement. You can declare this in the next line also, or you can declare the variables of same data type in same line also. Cout operator. Why I am using this? Because अभी मुझे वो दो नंबर चाहिए जिनके लिए मुझे सम कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रोग्राम जब भी कोई लिखता है तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि क्या नेक्स्ट स्टेज होगी मेरे प्रोग्राम की. तो सबसे पहले तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी. मेरे वेरिएबल्स बन गए हैं, अभी उसमें मुझे वैल्यूज चाहिए जिनके लिए मुझे सम और एवरेज कैलकुलेट करना है. तो अभी वो वैल्यूज कौन देगा? जैसे कि हमने प्रोग्राम में बोला है कि हमें यूजर से वैल्यूज लेनी है. तो मुझे यूजर से वैल्यूज लेने के लिए उसे कुछ मैसेज देना पड़ेगा. वो मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मुझे सी आउट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू यूज? आउटपुट स्टेटमेंट. हाउ टू राइट द आउटपुट स्टेटमेंट? सी आउट लेस देन लेस देन. ठीक है. इसके बाद आप डबल कोट्स में जो मैसेज आपको लिखना है, यूजर को बताना है, वो लिखे. एंटर टू नंबर सेमीकोलन. नाउ द यूजर विल एंटर दोस टू नंबर्स. और जैसे कि हमने इनपुट ऑपरेशन पढ़ा है, तो हम कैसे लेते हैं नंबर्स? अगर आपको लेना है तो आप कैसे वहां पे स्टेटमेंट टू गेट द नंबर फ्रॉम दैट यूजर और टू वेट the program, your program will wait for user to enter that number. The statement or coding part that we are going to write in your program is your cin statement. So cin greater than n1. Okay, listen guys, there is a difference. Cout less than operator. So extract, this is your insertion operator, this is your extraction operator. So cin extraction operator n1. No double quotes, nothing. Okay, n1. सिंपली वहां पे वो वैल्यू लिखो जिसमें आपको क्या करनी है, वो पहली वैल्यू सेव करनी है. सीन n2. नाउ आपके पास नंबर्स आ गए हैं. अब आप क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला कोड करेंगे. वहां पे आप फॉर्मूला लिखो. अभी सम क्या होती है दो नंबर्स की? यूज द प्लस ऑपरेटर. सो n1 प्लस n2. avg ये आपका सेकेंड वेरिएबल है. सी व्हाट वेरिएबल you have declared here, the same spelling and the same case variable you have to use here. You can't even change the lower case to upper case to lower case. मतलब
स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैसे ही आपको यहाँ पे यूज करना है इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम वंस यू हैव डिक्लेयर्ड इट लाइक दिस। एवीजी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स है उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज। अगर 5 एलिमेंट्स है तो पांचों नंबर्स के एडिशन एंड डिवाइडेड बाय 5, 6 नंबर्स का एवरेज है तो 6 नंबर्स की एडिशन और डिवाइडेड बाय 6। ओके, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सम, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है तो उसी को डिवीजन होगा 2। ओके, सो सम बाय 2। तो पहले मैंने सम लिख लिया, उसके बाद एबीसी कैलकुलेट किया। अब मुझे ये दोनों प्रिंट करने हैं। सी आउट, प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर सम इज इक्वल्स टू। अब ये जो इक्वल्स डबल कोट्स में है ये एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, द सम इज इक्वल टू, कुछ भी लिखा तो चलेगा यहाँ पे। लेकिन जब आप इसके सामने वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ओके, सो व्हाट यू हैव टू गिव इज सम इज इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू आनी चाहिए, तो सम इज इक्वल्स टू, फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्शन ऑपरेटर लिखना है एंड देन यू नीड टू राइट द वेरिएबल नेम whose value you want to print in front of this। तो वो वेरिएबल कौन सा है, सम। तो इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग बोलते हैं, कैस्केडिंग ऑफ द इंसर्शन ऑपरेटर। मतलब आपने सेम लाइन में क्या किया है, वो ऑपरेटर यूज किया है दोबारा से, ठीक है। उसके बाद सी आउट एवरेज, देखिए ये मैंने डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल कोट्स का कोई लेना देना नहीं है वेरिएबल नेम के साथ। डबल कोट्स यानी कि जो भी आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द एवरेज इज, ओके, और द एवरेज इज इक्वल्स टू, या फिर कैपिटल ए कर लो, यहाँ पे कैपिटल एस कर लो, उसका कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डबल कोट्स का कंटेंट है, वो सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए बना है, उससे कोई वैल्यू रिलेट नहीं हो रही या वो किसी को रेफर नहीं कर रहा है। बट व्हेन यू आर राइटिंग वो वैल्यू टू बी प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ दिस, तब आपको वही वेरिएबल लिखना है। तो मुझे एवरेज के सामने कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आनी चाहिए, so I will use again the insertion operator and write the variable name जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर होती है, avg। Now return 0. This is the last statement that you write before ending your main function. Then close the curly bracket. This is the simple program. Now we can see the output. तो इसमें जो आउटपुट होगा वो आपका कैसे आएगा, एंटर टू नंबर्स, क्योंकि सबसे पहले आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, हेडर फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी, एसटीडी इंपोर्ट हो जाएंगी, मेन फंक्शन से रन होगा एग्जीक्यूशन, उसके बाद ये जो वेरिएबल्स है ये क्रिएट हो जाएंगे और फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ कंपाइलर आएगा ना आपका, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर टू नंबर, उसके सामने आपको 2 नंबर एंटर करने हैं एंड देन दिस कोडिंग पार्ट विल रन, ठीक है। जैसे ही पहला नंबर आप एंटर करोगे मीन्स 20, N1 का साइन हो जाएगा, दूसरा नंबर एंटर करने के बाद 60, N2 का साइन हो जाएगा। देन दिस स्टेटमेंट विल रन, सम विल बी कैलकुलेटेड, 20 plus 60 80 which will be stored into sum। Then average will be calculated, 20 plus 60 divided by 2 means 80 divided by 2 is 40, so it will be assigned to avg। तो अभी सम की वैल्यू है 80, avg की है 40। अब हम इनको प्रिंट कर रहे हैं, तो वहां पे एज इट इज सम इज इक्वल्स टू 80, एवरेज इज इक्वल्स टू 40। See, this is the basic, I have just used online compilers, okay। For now we can use this, okay, just for the practice purpose we can also use this। Just go to Google, type online C++ compiler, the very first link is GDB compilers, and you can use this to run the basic C++ program or any program. They are given the multiple options here। See, I have just typed your first program, hello world। यहाँ पे हमने सिर्फ वो कोड क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, and you may see the output, hello world, okay, that's it। This part is the output here, hello world। Similarly, the second program, C,
This is the simple program that to add the two numbers. So the same code is here, and you can see after running, it is asking me to enter the two numbers. Okay, so obviously I will 20 and then suppose 100. Okay, enter, and it is ये जो दो नंबर थे कि मैंने अभी एंटर किया है, ठीक है, मैंने पहला नंबर 20 दिया, सेकंड 100 दिया, बिकॉज इट हैज वेटेड फॉर ट्वाइस, इट हैज आस्क्ड मी ट्वाइस, व्हाई, बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे सी इन n1 और फिर सेकंड इनपुट स्टेटमेंट है आपका सी इन n2. See guys, you can do this in one line also. You just have to write here C in n1 n2. That's it. So it's the coding line. No need to include this statement. So this is known as cascading of the extraction operator. So you can perform the cascading in both cases. सी आउट की केस में भी ये जो है ना, ये सेम लाइन में यूज किया है, तो इसे बोलते हैं कैस्केडिंग, वन आफ्टर द अदर. सिर्फ एक बार आपको सी आउट लिखना है और उसके बाद जितनी लाइन आपको प्रिंट करनी है वो उसके आप सामने वहां पे लिखना. ओके, जैसे यहाँ पे सामने भी कुछ लिखा, फिर जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो लिखी, और उसके बाद स्लैश एंड कैरेक्टर दिया. स्लैश एंड कैरेक्टर का यूज क्या है, तो अगर मैं स्लैश एंड कैरेक्टर हटा दूं तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, ये जो सम और एवरेज है ये एक ही लाइन में आ जाएगा. Enter numbers 20 case 60 enter see the sum and average in the same line. बट हमेशा हमारा आउटपुट जो है ना वो प्रेजेंटेबल वे में होना चाहिए. दो वी नो हाउ टू प्रोग्राम, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज टू शो द समथिंग विच इज प्रेजेंटेबल रीडेबल फॉर्मेट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक slash and character input person, which is written in the double line and which is known as a next line character. And now if you run this, twenty. Now the sum and after this displayed on two different lines. So we got this, right? The use of slash and the cascading, how you can perform cascading. You can save this program also. You just have to save it. It will ask you to which account आपको मतलब किसमें सेव करना है. जैसे आप यहाँ पे एक बार सेव करोगे तो ये आपको अकाउंट पूछेगा गूगल, एंड देन उसमें से आपका जो भी अकाउंट है उससे लॉग इन करना. ये आप फॉर नाउ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं जब तक हमारी एक्चुअल वर्चुअल ऐप क्रिएट नहीं होती है. ठीक है, आप यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करो अपना और फिर वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा. And then you can download this code also. And once you download this code, you just open it with the notepad. And you can just have this program saved to your systems. So whenever you will be actually performing the program, though I'm going to share these files with you, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें रेडीमेड ही मिले, आपको पता होनी चाहिए ये चीजें. So you can keep this programs in your system saved for a long time. So it will be just copied as it is. So एक online GDB compiler, the very first link you okay. Just type online C++ compiler and the very first link that you get. Okay, you just the very first link GDB. Just practice here. ठीक है, यहाँ पे जो है ये रेडीमेड आपको पूरा इसमें ये मिलेगा टेम्पलेट, बट यू डिलीट इट एंड यू टाइप ऑन योर ओन. डोंट कॉपी द कोड. ओके, डोंट कॉपी द कोड, टाइप ऑन योर ओन.
एंड जस्ट राइट द प्रोग्राम एंड रन इट एंड सेव और डाउनलोड का मैंने बता दिया आपको. Okay, let's move on towards the main program, that is using class. Okay, so first of all we will see the structure of C++ program. एक class जिसमें define होती है ऐसे program का structure कैसे होता है. First of all we include the header file. हेडर फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूड करना, क्योंकि उसमें सारे स्टैंडर्ड जो भी बिल्ट इन या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स है उनके डिक्लेरेशन इंक्लूडेड होते हैं. तो ये सबसे पहला पार्ट है, पहली स्टेज है प्रोग्राम लिखने से पहले, क्योंकि कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें स्टेजेस पता होनी चाहिए. अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, ठीक है. भले लॉजिक हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर आपको सीक्वेंस या उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर्म में पहले इधर लेफ्ट साइड में फोटो लगता है, फिर पहले नाम ही आता है, या पहले सबसे पहले एड्रेस आता है क्या? नहीं. जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आती है. ठीक है. सो सिमिलरली देयर इज सर्टेन फॉर्मेट दैट द प्रोग्राम विल फॉलो, एंड दिस इज defining this diagram is showing the stages to which will help you to write your program. So this will be using the class concept, and hence this is a structure of standard C++ program. Okay. So include header files. Secondly, class definition. आपको पता है क्लास क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्लास. तो इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट. तो आपके प्रोग्राम में जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके एट्रीब्यूट और फंक्शंस इस क्लास के अंदर डिफाइन होंगे. ठीक है. जैसे हमने स्टूडेंट के बारे में क्लास ली थी, उसके एट्रीब्यूट जो थे, एट्रीब्यूट यानी कि जो चीजों से स्टूडेंट कॉलेज में आइडेंटिफाई हो सकता है, दोज आर नेम, एज, जेंडर एंड ब्रांच. तो ये हुए उसके एट्रीब्यूट. और उसके फंक्शन हुए स्कोर, देन एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स एंड दैट्स इट. और डिस्प्ले द मार्क्स. ओके, ऐसे कुछ फंक्शन स्टूडेंट एग्जीक्यूट करेगा. देन whatever the class definition, आपने यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, उनको उस एक्चुअल फंक्शन जो है उनकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी. मतलब वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या करेगा. जैसे एग्जाम स्कोर है स्टूडेंट का वन ऑफ द फंक्शन, तो एग्जाम स्कोर में क्या हो रहा है, तो एग्जाम स्कोर में सारे जितने भी सब्जेक्ट है 5 to 6 उनका एवरेज कैलकुलेट हो रहा है या परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है. तो वो कोडिंग पार्ट कहाँ आएगा, उस फंक्शन की डेफिनेशन में. इसलिए आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी, आप वो क्लास के जो मेंबर फंक्शंस है उनको डिफाइन करेंगे. ठीक है. क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं मेंबर फंक्शन. तो क्लास के एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा मेंबर्स आप ऑलरेडी वहां पे डिफाइन कर चुके होंगे. मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन आपको उसके बाद डिटेल में लिखनी पड़ेगी. वंस यू declare them inside the class, you have to define them. And at last, the main function is there. From where the objects will be created here, and those objects will be accessing these functions which are defined inside the class. ठीक है. तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत और डिटेल में समझेगा जब हम एक्चुअल में वो प्रोग्राम रन करेंगे ऑब्जेक्ट का. And remember, in memory area also these files are saved separately to keep the इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी लेसर. और इसमें क्या होता है, हमें एक्सटेंड करना पड़ता है ना प्रोग्राम को, इसलिए जो हेडर फाइल्स और क्लास डेफिनेशन है ये अलग फाइल में सेव होती है, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन अलग इसमें सेव होती है, मेन फंक्शन कभी अलग मॉड्यूल मतलब अलग पोर्शन में मेमोरी के सेव होता है, स्टोर होता है. इससे क्या होता है, आप जब चाहे जिसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड मॉडिफाई कर सकते हैं. क्लास को एक्सटेंड कर दो, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दो. तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको मिलती है C++ प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, प्रोग्राम पूरा अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता है. इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम क्लास डेफिनेशन देखेंगे, क्लास डेफिनेशन, उसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, और लास्ट में मेन फंक्शन डेफिनेशन. Listen carefully, this is very important program and this is going to be your first practical also. जब भी कभी आपको प्रैक्टिकल होगा आपको सबसे पहले यही प्रोग्राम रन करके दिखाना है. तो दिस इज C++ प्रोग्राम इन क्लास. ये जो प्रोग्राम है इसमें हम यूजर के मतलब एम आपको पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में, क्या क्यों लिख रहे हैं हम ये प्रोग्राम. सो बेसिक एम इस प्रोग्राम का ये है कि आपको यूजर से
किसी पर्सन के लिए नेम और एज इनपुट करवा के लेने हैं, और फिर जो नेम और एज यूजर ने एंटर किए कीबोर्ड के थ्रू उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, एक पर्सन के लिए आपको क्या करना है, नेम और एज लेना है यूजर से इनपुट, और उसके बाद वही नेम एंड एज डिस्प्ले करना है। ये इसका सिंपल एम है इस प्रोग्राम का। आई हैव एडेड अ कमेंट लाइन, ओके, स्टार्टेड विद द बेसिक लाइन। ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। नाउ सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा जाता है, इंक्लूड कर लिया हमने हेडर फाइल्स, अब हम क्या लिखेंगे, क्लास डेफिनेशन। ये है आपकी क्लास डेफिनेशन। अब मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम में नेम और एज ये दोनों क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स, पर्सन के एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले मैं जब क्लास क्रिएट करूंगी, यू कैन गिव एनी नेम टू दैट क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ नाम दिया है पर्सन। रिमेंबर दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो अगर आप पी स्मॉल यूज कर रहे हैं तो स्मॉल पी ही यूज करें पूरे प्रोग्राम में। जब भी क्लास का नाम आएगा, अगर आप कैपिटल पी यूज कर रहे हैं तो पूरे प्रोग्राम में कैपिटल पी ही यूज करें। ओके, सो दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लास, this is the keyword space name of the class person, okay, this is given by me, मतलब programmer, ठीक है, opening brace. Now here I will define the attribute and the function. यहाँ पे मैं वो एट्रीब्यूट्स और वो फंक्शंस लिखूंगी जो मुझे लगता है कि मेरा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए ये जरूरी है। तो मेरा पर्सन क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसे क्या क्या करना है, उसके एट्रीब्यूट्स नेम और एज रहेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को दो फंक्शन परफॉर्म करने हैं। एक तो वो उसको डिस्प्ले करना है नेम एज, और पहली चीज उसको वो एंटर करा के लेना है यूजर से, और उसके बाद दूसरा काम उसे करना है ऑब्जेक्ट को कि वही चीजें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, ये हुए ऑब्जेक्ट के फंक्शंस। इसलिए मैंने इसमें एट्रीब्यूट जो लिखा है आप देख सकते हो, char name 30, so this is an array with the size 30 and second variable integer age. Now here you may see what is this public, इसे बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट these are private। ठीक है, आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट सभी डेटा मेंबर्स क्लास के प्राइवेट ही होते हैं। प्राइवेट क्लास मेंबर्स होना इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ इस क्लास के मेंबर फंक्शंस ही नेम और एज की वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ प्राइवेट होना मतलब। और अगर आप इसको पब्लिक कर देते हैं तो ये जो नेम और एज है इनकी वैल्यू प्रोग्राम में कोई भी चेंज कर पाएगा या उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देगा। इसलिए हमें क्लास में एक प्रोविजन है कि हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके ये डिसाइड करें कि हमें कौन सा डेटा एक्सेस करवाना है और कौन सा डेटा एक्सेस नहीं करवाना है आउटसाइड द क्लास। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमने बोला था कि जो एनकैप्सुलेशन फीचर बोला था ना, डेटा सिक्योरिटी अचीव करता है। सो इनसाइड द क्लास हम डेटा एम्बेड करके रखते हैं, एनकैप्सुलेट करके रखते हैं, जिसमें हम ये खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डेटा एक्सेस करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर। तो जब भी हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, यू हैव टू राइट फर्स्ट द एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके नीचे फिर आप वो कंटेंट लिखोगे जो आपको प्राइवेट रखना है। जैसे मुझे char नेम और इंटीजर एज ये दो वेरिएबल प्राइवेट। उसके बाद हम पब्लिक दिस इज द अनदर एक्सेस स्पेसिफायर। इससे क्या होगा कि ये जो फंक्शन है आउटसाइड द प्रोग्राम एक्सेस हो गए। तो void get data void display void, since there is a no return type of this function, I have written void semicolon. Every statement has ended with semicolon, just the difference is of access specifier at the end of which you have to write colon. Okay, so this is colon. Similarly here also colon. अगर आप ये प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट आपके जो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स है वो प्राइवेट बन जाएंगे। तो ये पोर्शन आप स्किप कर दे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्राइवेट ही बन जाएंगे, so that they will be accessed only with the help of this
two functions. Now this was the class definition. Let's move on towards the next part of your program, member function definition. अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्चुअल में आपने जो गेट डेटा और पुट डिस्प्ले दो फंक्शन यहाँ इंक्लूड किए, मैंने दो ही फंक्शन क्यों लिखे, क्योंकि एक में मुझे एंटर करवाने के लिए कोड लिखना है और एक जो है वो डिस्प्ले करने के लिए, जो भी नेम और एज है इसको डिस्प्ले करने का कोडिंग इसमें आएगा, और एंटर मतलब यूजर से इनपुट लेने का कोडिंग इसमें आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दो ही फंक्शंस यूज किए हैं। चलो पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं। जब भी आप क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करते हो, सी यहाँ पे आपकी क्लास एंड होगी, आफ्टर एंडिंग द क्लास यू हैव टू गिव सेमीकोलन। अगर आप ये सेमीकोलन भूल जाते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएंगे। जब भी आप क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करते हो, you have to use the scope resolution operator, colon. How to write this syntax is, we are going to learn scope resolution operator in the chapter of operators. ठीक है, अभी इसके बाद ही आएगा वो नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर होगा उसमें। So void, this is the return type of get data, then name of the class to which this function belongs to, that is person, then give the scope resolution operator colon, name of the function and the argument path. तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक void और get data void, ये आपका पूरा फंक्शन नेम ही है। सिर्फ बीच में कौन सी चीजें ऐड करनी है, क्लास नेम और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ओपन द कर्ली ब्रेस। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगी उस फंक्शन की। क्या करेगा गेट डेटा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, एंटर नेम, और फिर नेम एंटर होगा। ओके, सी आउट एंटर नेम, सी इन नेम। सिमिलरली एज के लिए एक मैसेज डिस्प्ले होगा, सी आउट एंटर एज, सी इन एज। अब क्योंकि आपने एडिशन का प्रोग्राम देख चुका अभी यहाँ पे देखा, तो मैं ये फिर से चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सी आउट और सी इन का जॉब क्या है। देन वॉइड पर्सन, सेकेंड फंक्शन। हमारा पहला फंक्शन हो चुका है डिफाइन करके, अभी हम सेकेंड डिफाइन करेंगे। कौन सा है सेकेंड फंक्शन, डिस्प्ले। चलो इसको डिफाइन करते हैं, वॉइड पर्सन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले वॉइड, सी आउट स्लैश नेम कोलन नेम। डिस्प्ले क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ नेम में असाइन हो चुकी है उसको एज इट इज डिस्प्ले करेगा इन फ्रंट ऑफ द मैसेज दैट आई हैव एनकोडेड इनसाइड दिस डबल कोट्स। ठीक है, नेम के सामने नेम प्रिंट होके आना चाहिए, एज के सामने वो वैल्यू प्रिंट होके आना चाहिए। तो नेम सपोज कुछ भी एबीसी दिया है यूजर ने, तो नेम एबीसी, एज सपोज 25, तो 25 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। और ये स्लैश एन क्यों लिखा है, सो दैट ये नेक्स्ट, ये जो भी इससे पहले आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ के ये प्रिंट होना चाहिए, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन से लेना देना इसका स्लैश का, कोडिंग से नहीं। नाउ वी विल राइट द मेन फंक्शन। आप देखिए मेन फंक्शन बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना होता है। अटेंडेंस आ गई होंगी स्टूडेंट्स, जस्ट मार्क योर अटेंडेंस। केली का मार्क, Yes, ma'am. ज्यांनी केली Yes, नसेल ma'am. त्यांनी आता करून टाका, विसरले असेल तरी चालेल, मी कन्सिडर करून घेईल 1 वाजेपर्यंतची अटेंडन्स। अप टू 1 जिनका डन लेट हुआ होगा वो भी मैं कंसिडर कर लूंगी, मतलब मार्क कर सकती हूँ। Now see the very simple main function. So this is the coding part where actually some action will happen. ये जो चीजें आपने ऊपर लिखी है वो सब अभी कैसे कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, वो यहाँ मेन में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास पर्सन। मेरी क्लास का नाम पर्सन है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी क्लास नेम स्पेस, यहाँ पे एक आप नाम दे दे उस ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे P1, P2 और S1, S2 या person1, कुछ भी नाम दो, मतलब स्टैंडर्ड रिजर्व्ड कीवर्ड छोड़ के आप कोई भी नाम दो खुद का। तो यूजर यहाँ पे पूरा यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा नाम देगा अपने ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ सिंपल नाम लिखा है P, ओके, P अल्फाबेट यूज किया मैंने, सेमीकोलन। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मेमोरी में उसको उतने एट्रीब्यूट्स और उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए राइट्स मिल जाते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स असाइन हो जाएंगे P को, 2 एट्रीब्यूट्स, नेम, एज। Along with that, now your object is able to access which 2 functions, get data and display। क्यों? क्योंकि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब इस क्लास की जेरॉक्स कॉपी है, इसलिए इसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और वो दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ एबल टू एक्सेस
the functions defined inside that class also. अब हम एक्सेस कैसे करते हैं? यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, राइट? ये मैसेज पासिंग के कंसेप्ट में बताया था आपको, याद है? मैसेज पासिंग में हमने क्या लिखा था? एम्प्लॉय डॉट सैलरी इन ब्रैकेट नेम। तो यहीं पे यही चीज यहाँ हो रही है, जो ऑब्जेक्ट नेम है पी डॉट ऑपरेटर, जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द फंक्शन गेट डेटा। तो पी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गेट डेटा को कॉल करेगा, और इससे क्या होगा? आपका कंट्रोल कहाँ पास होगा? गेट डेटा फंक्शन पे, और ये फंक्शन रन होगा कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? फॉर द पी ऑब्जेक्ट। ओके, योर पी ऑब्जेक्ट for p object, this function will run. Enter name, and whatever the name you will enter, that will be assigned to the p's attribute name. p को कितने एट्रीब्यूट असाइन हुए होंगे? एक पहला नेम और दूसरा एज। तो यहाँ जो भी आप नेम एंटर करोगे वो p के नेम एट्रीब्यूट में जाकर स्टोर हो जाएगा। सेकेंडली एंटर एज, जैसी एज एंटर होगी बाय द कीबोर्ड, वो p ऑब्जेक्ट के लिए जो एज एट्रीब्यूट है उसमें जाके असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम कॉल करेंगे p डॉट डिस्प्ले। p डॉट डिस्प्ले जैसे आप कॉल करोगे, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल पास टू हियर एट दिस पॉइंट एंड दिस फंक्शन विल रन। वहां क्या होगा? नेम कोलन, यहाँ कौन सी वैल्यू आएंगी? वॉट एवर द वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट्स नेम एट्रीब्यूट, एज इज इक्वल टू वॉट एवर द वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट पीज एज एट्रीब्यूट। तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज वहां असाइन हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन? रिटर्न 0। दैट्स इट। ये हो गया आपका प्रोग्राम का कोडिंग। ये प्रोग्राम जब रन होता है तो don't leave the meta. See the same program we have written. क्लास पर्सन, देखिए मैंने उसको बोले 3 इसमें डिवाइड किया हुआ, आपको वो प्रोग्राम कंटिन्यूसली लिखना है एडिटर में। ये है अपनी क्लास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया पहला, उसके बाद दूसरा, और फिर लिखा लास्ट में मेन। तो ये जो है ये हुए मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन। ये है ऊपर की क्लास और ये है नीचे मेन फंक्शन। सबसे एंड में लिखते हैं मेन, इसीलिए इसको बॉटम ऑफ अप्रोच बोलते हैं। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब हम इसको रन करेंगे। तो ऑब्वियसली रन कहाँ से होता है आपका प्रोग्राम? फ्रॉम द मेन। ऑब्जेक्ट पी क्रिएट हो गया और उसने सबसे पहले रन किया है गेट डेटा फंक्शन को। और जैसे कि आप देख सकते हैं गेट डेटा फंक्शन क्या बोलता है? एंटर नेम। So I will enter name. It is again asking me second statement, enter age, and it is now the object has nextly run the display function and it has displayed name colon whatever the name value I have entered, age colon whatever the age value I have entered for that object. And students, you can create the number of objects in the program person P1, and we can just write again for next student। अगर आपको और एंटर करना है डेटा, ठीक है, एक ही पर्सन तो नहीं है, बहुत सारे पर्सन होंगे जिनका डेटा आपको सॉफ्टवेयर में सेव करना होगा। सो सिंपली राइट p1 डॉट गेट डेटा, दिस इज हाउ वी कॉल द फंक्शन। फिर से हम लिखेंगे p1 डॉट डिस्प्ले। इससे क्या होगा? एक अलग से नया ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, जिसको फिर से नए एट्रीब्यूट असाइन होंगे। दिस इज जस्ट लाइक देयर इज अ खाने का भंडारा चल रहा है और हर कोई अपनी अपनी प्लेट लेके आ रहा है, एंड एवरीवन इज गेटिंग द सेम प्लेट और डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट इनसाइड दैट, ठीक है। तो उनका मैटर वो जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो उनको फॉर्मेट मिल रहा है, प्लेट्स मिल रही है, वो सेम ही है। So everyone is getting the same format, same ढांचा, okay? So name, age सबको मिलेंगे,
ठीक है, सबको मिलेगा, बट द वैल्यू इनसाइड दैट विल बी डिफरेंट, इसलिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ये पहले जो है ये पी के लिए मुझे पूछ रहा है, तो ABC, एज के लिए पूछ रहा है 20, ये हुआ P1। इसके बाद इसने फिर से मुझे पूछा है एंटर नेम, ये किसके लिए है अभी, ये अभी किसके लिए है, फॉर द P1, for the P1 object. Okay, so it is asking me XYZ, enter age। पहले वाले में आया था क्या, नहीं, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था, नेम एंड एज। तो दिस इज हाउ, या फिर आप इसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, आप P के लिए पहले गेट डेटा कॉल कर लो, फिर P1 के लिए गेट डेटा कॉल कर लो, एंड दिस इज हाउ। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है ना, वो आपकी क्या होगी कि आप पहले P का डेटा एंटर करवा लो, फिर डिस्प्ले करो, फिर P1 का डेटा एंटर करवा लो और डिस्प्ले करो। ओके, दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो। और जैसे कि हमारा आउटपुट क्या नेक्स्ट लाइन पे भी ले सकते हैं हम लोग, यू जस्ट हैव टू ऐड द स्लैश इन कैरेक्टर। फिर से एंटर करना पड़ेगा। ओके, so just by entering here, if you enter here slash n, तो आपका जो नेक्स्ट ये आउटपुट है ना, इसके बाद वाला ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, एंड इट विल कम बिलो, यहाँ से जाइए नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन। So that was about the simple class program. Okay, so just one